What is agriculture? The first and the foremost question of this topic is, what is agriculture? Simple, very simple. This is the primary activity. This is the primary activity which includes the production of crop. Which includes the production of crop, and it also includes animal husbandry. Simple. As simple as that. It is a kind of primary activity which includes the production of crop or cultivation of crop also you can write, and as well as animal husbandry. Simple. How many types of agriculture are there? So see, why we are studying this topic, what is the importance and the significance of this topic. Agriculture constitutes approximately, I have told you in the economics class also, approximately 17% of the total GDP. I am talking about the current situation. And approximately 44% of the total employment. What is the other significance of it? Agriculture for the rural economy, it is not the kind of income earning facility for the rural people, but it is a kind of life, way of life. एग्रीकल्चर उनके जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है. अगर आप किसी फार्मर को उठा करके बोल दें, ऑल्दो दे आर एजुकेटेड, ठीक है, अगर आप उसको बोल दें कि आप लो, ये लो फोन चला लो, ये लो आप कुछ नेटवर्किंग में कुछ कर लो, डेटा एंट्री वगैरह कुछ कर लो, 2 दिन करेंगे, 4-5 दिन करेंगे, उनको मन नहीं लगेगा, मतलब आफ्टर सम टाइम दे विल लीव दैट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ inbuilt character what they have developed. Agriculture is not a new thing that they are doing. Agriculture has been practiced in India since so long, and agriculture शुरू से ही इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन रहा है, from the very starting, चाहे वो वैदिक टाइम हो, even the Indus Valley civilization's economy was based on agriculture. So you can imagine the importance of agriculture, especially for the country like India. That's why it becomes a very, very important topic for us to understand. Now how many types of agriculture are there? Broadly in class 10th, very good, yes, very good, you are correct. So there are basically 3 types of agriculture. First one is the subsistence, primitive subsistence. Primitive को primary बोल लीजिए, no problem. Primitive, by the way, primitive subsistence. Second one is intensive subsistence. हाँ मैं बताऊंगा, डोंट वरी. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. एंड द थर्ड वन इज द कॉमर्शियल फार्मिंग. मैं पूरा डिवीजन कर लेता हूं पहले. थर्ड वन इज द कॉमर्शियल फार्मिंग. अगर आपको कहीं नोट वर्दी लगे या कोई चार्ट कोई आपको नोट वर्दी लगे, देन यू कैन नोट ऑल्सो. ओके फाइन. तो मैं फिर से लिख देता हूं ना एग्रीकल्चर का डेफिनेशन. दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी, ओके. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. व्हाट इज प्रिमिटिव? अच्छा मैं बताऊंगा. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. मैं पूरा पहले डिवीजन कर लेता हूं. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कॉमर्शियल फार्मिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स बेसिकली. कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है प्लांटेशन. कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है और kind of multiple cropping. These two. What is primitive subsistence? What is primitive subsistence? नाम से ही पता चल रहा है. primitive मतलब something very very basic, ठीक है. primitive subsistence का मतलब होता है the agriculture which is done for the sustain.
for the sustainability. The agriculture which is done for the sustainability of the farmer. There is no any kind of commercialism connected to it. No commercialism. The agricultural products are basically used by the farmers for their own purpose. For their own purpose. They do not sell these products and go to the market and sell this product. This is not market oriented farming. Not market oriented farming. ये क्या होता है, जो फार्मर लोग अपने घर में, कई बार आपने देखा होगा छोटा मोटा खेत होता है लोगों का, वो घर में अपनी खेती वगैरह कर लेते हैं, जो भी सब्जी साग छोटे जो राइस हो गई, पैडी हो गया, वीट हो गया, जो अपने लिए उपजाते हैं, खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपनी पूरी फैमिली से उनका गुजर बसर हो जाता है. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. And this was the pattern of Indian agriculture before Britishers came to India. This commercial farming is being introduced by Britishers in India. Before this, there was only primitive subsistence and up to some mark intensive subsistence. That's it. There was no any kind of commercial farming before Britishers. So it is broadly based upon the sustainability. Now what are the other farming that is included in the primitive subsistence? इसका और क्या टाइप है? You must have heard this word, zooming. Zooming is a type of slash and burn. Zooming is a type of slash and burn agriculture which is practiced mainly. ये पूरे इंडिया में ही प्रैक्टिस होता था पहले. अभी रेस्ट्रिक्शन हो गया है क्योंकि स्लैश एंड बर्न करने से देयर इज अ डैमेज टू द एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड. हाँ, ये बेसिकली अभी भी होता है नॉर्थ ईस्ट में. वेरी गुड. नॉर्थ ईस्ट में होता है इन सम पार्ट्स ऑफ हिमालय. हिमालयन माउंटेन में भी ये अभी भी प्रैक्टिस में है क्योंकि देयर ट्राइब्स रिसाइड and tribal community is still based upon this kind of zooming. What is zooming, by the way? Why we are saying this as the primitive subsistence? क्योंकि ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं zooming से, वो उधर जाके मार्केट में बेचते नहीं है, वो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों के लिए खाते हैं, खत्म. What happens in this slash and burn? नाम से ही पता चल रहा है. पहले they cut the tree, पूरे के पूरे एरिया को वो कट कर देते हैं, वहां पर वो फार्मिंग करते हैं. Once the fertility is reduced, जब वहां की फर्टिलिटी कम होने लगती है उस पर्टिकुलर एरिया की, then they shift to the other area and there they again cut the tree and they again do the farming. कुछ साल फार्मिंग करते रहते हैं या फिर कुछ ऑल्टरनेट ईयर पे फार्मिंग करते हैं. जब देखते हैं कि प्रोडक्शन उनका घट रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, then they shift to the other. So this kind of farming is known as zooming or slash and burn. I hope primitive subsistence is clear. No problem at all. एक बार आपको NCERT में कुछ नाम वगैरह देख लेना है कि primitive subsistence का और कौन सा नाम है. फॉर एग्जाम्पल primitive subsistence को काउन बोलते हैं इन वेनेजुएला. ठीक है, वेनेजुएला में इसको काउन बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो the complete list in a box is given in the NCERT, so there you can check all the other names. कहीं पे खिल बोलते हैं, किल बोलते हैं शायद राजस्थान में. so that you can check into that list. ठीक है, उससे भी. तो हिमालय, हाँ हो सकता है. इसका जो लिस्ट एक राइट साइड में दिया हुआ है पूरे एनसीईआरटी में. अगर आप बोलिएगा तो मैं पूरे लिस्ट को यहाँ पे एक बार डिस्कस भी कर लूंगा आपसे, है ना. जो भी लिस्ट इसमें नहीं, अभी कर ही लेते हैं ना. वन इज मिल्पा एंड कोनुको. दिस इज कोनुको. हाँ, नहीं, मैक्सिको एंड हाँ वेनेजुएला. मिल्पा इज इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. कोनुको इज इन वेनेजुएला.
और इंडिया में कुछ कुछ नाम इसके क्या 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 है, बेवार या दहिया बोलते हैं या पोडू, बेवार बोलते हैं और दहिया और एक पोदू, ये दीज आर द टू प्रोमिनेंट नेम। बेवार कहां पर बोलते हैं इसे, मध्य एमपी में बोलते हैं, और बेवार एमपी में बोलते हैं, और ये पोडू किस में बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ कुछ नाम है विच आर इंपॉर्टेंट, तो दैट यू कैन सी। नाउ लेट अस गो टू द अदर टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। देखिए ये भी सब्सिस्टेंस ही है, दिस इज ऑल्सो सब्सिस्टेंस, बट व्हाट इज द फीचर ऑफ इट, इंटेंसिव किसको बोलते हैं, विच इज कंसंट्रेटेड। इंटेंसिव मतलब होता है कंसंट्रेटेड, विच इज यू नो अ काइंड ऑफ की जटिल काइंड ऑफ थिंग, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। सो व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, दिस इज बेसिकली कैरिड आउट इन द एरिया विच इज हाईली पॉपुलेटेड, इट इज कैरिड आउट इन द हाईली पॉपुलेटेड एरिया। ये सारी इसके फीचर्स हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको दे देंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द हाईली पॉपुलेटेड एरिया, वो आपको प्लांटेशन दे देंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, मल्टीपल क्रॉपिंग, ऐसा वो 3-4 आपको एग्जांपल दे देंगे, एंड देन यू हैव टू चूज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम? Fine. So it is practiced in the highly populated area. What are the other features of this intensive subsistence? It is labor intensive. चलिए labor intensive तो अभी रहने दीजिए. This is carried out in the small patch of land. It is carried out in the small patch of land. Small patch of land में ज़्यादा productivity चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? High amount of biochemicals are used. High amount of biochemicals are used. ठीक है, छोटे से पैच ऑफ लैंड में फार्मिंग हो रही है, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हमें उसमें बायोकेमिकल्स अलग अलग तरह के, जो हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह कुछ कुछ नहीं बनाते, वो सब कंपोस्ट वगैरह इसमें डालेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो जाकर के प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी हमारी। ठीक है, सो दिस इज प्रैक्टिस्ड इन द हाईली पॉपुलेटेड एरिया, स्मॉल पैच ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड, हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल्स आर यूज्ड। और एक बात इसमें हम क्या करते हैं, हाई इरिगेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि छोटे से जगह पे आपको प्रोडक्टिविटी करनी है, तो आपको इरिगेशन पानी भी तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो वाटरिंग क्या कीजिएगा। व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा है, समथिंग रिलेटेड विद द कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। द फार्मिंग विच इज कैरिड आउट फॉर द मार्केट, द फार्मिंग विच इज डन for selling in the market, for selling in the market is called commercial farming. डन है, कोई दिक्कत नहीं। The farming which is done for selling in the market is called commercial farming. Commercial farming का there is one type which is the plantation. What are the features of plantation? अच्छा, सबका मैं कुछ कुछ एग्जांपल भी दे दूं क्या। देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो ट्रेडिशनल हमारे क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल पैडी, जो हमारी स्टेपल्स हैं, ठीक है, व्हीट, फॉर एग्जांपल बाजरा, ज्वार, रागी, these are the traditional crops which are grown in the primitive subsistence. और कुछ ट्रेडिशनल फ्रूट्स वगैरह हो गए जो घरों में होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल गुआवा हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, जो लोग घर पे लगाते हैं, वो अपने दैट आल्सो इज इंक्लूडेड इनटू इट। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में छोटे छोटे
छोटे छोटे पैच में होता है ये, तो वेजिटेबल्स लोग बनाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं इसमें छोटे छोटे पैचेस में, जितना हो पाता है उतना क्रॉप भी वो कर लेते हैं, व्हीट एंड बार्ले एंड ऑल, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग का एग्जांपल मैं बताता हूं, पहले प्लांटेशन समझिए। व्हाट इज प्लांटेशन? अ बिग पैच ऑफ लैंड। कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है बिग पैच ऑफ लैंड पर होती है। इट इज अ लेबर इंटेंसिव। अच्छा, एक इसका फीचर जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का एक फीचर लिख लीजिए, दिस इज द कैपिटल इंटेंसिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग एंड द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग? कैन यू टेल मी? कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में डिफरेंस क्या होता है, बताइए। प्लांटेशन जो है लेबर इंटेंसिव है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। देखिए, कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब हुआ? मोर एंड मोर कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, कैपिटल में क्या आता है? मशीनरी, एग्रीकल्चरल टूल्स, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स, मशीनरी एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड इसमें एडवांस टेक्निक, एडवांस एंड साइंटिफिक टेक्निक, एडवांस एंड साइंटिफिक टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें किस तरह के टूल्स यूज में आते हैं? प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड। प्रिमिटिव टूल्स में कौन कौन से आते हैं? प्लग शेयर हो गया, हो गया, HOE, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया प्लग शेयर, जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल हो गया, जो कि लकड़ी वाली होती है। सो दीज टाइप ऑफ प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड इन दिस। नाउ कॉमर्शियल फार्मिंग में ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होता है फार्मिंग करने के लिए। गॉट दिस? द थर्ड थिंग इज a single crop is grown over the whole field। एक ही तरह का क्रॉप को पूरे फील्ड में लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होता है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग? कैन यू टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग? No, why no? So many examples are there. Plantation farming is tea. Where is tea? In Assam, in West Bengal. So you can write WB West Bengal, Assam. यहाँ पर टी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। असम की टी आपने सुना होगा। कॉफी, कॉफी कहाँ सबसे ज्यादा होता है? कर्नाटका। कर्नाटका में कॉफी काफी ज्यादा सस्ती है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो कॉफी इज ऑल्सो, हाँ, वो दूसरे किस्म की कॉफी वहां मिलती है और काफी सस्ते दाम में। कॉफी इज वन ऑफ द एग्जांपल। प्लांटेशन का और कौन सा एग्जांपल है? शुगर केन। शुगर केन कहाँ होता है? कैन यू टेल मी? बिहार, यूपी, ठीक है। शुगर केन बिहार, यूपी में काफी ज्यादा होता है। और व्हाट एल्स इज द एग्जांपल? बनाना। बनाना कहाँ होता है? बनाना भी अगेन बिहार में ही होता है काफी ज्यादा। तो ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं बनाना, अपने खाने के लिए नहीं करते। ये टी, कॉफी, शुगर केन अपने लिए नहीं करते। दे प्रोड्यूस फॉर द मार्केट पर्पस, दे प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्टिंग, दे प्रोड्यूस फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है? एक ही पैच ऑफ लैंड पे मतलब अलग अलग इंटरवल पे या फिर एक ही सीजन में काफी सारे अलग अलग तरह के हम क्रॉप लगा देते हैं।
It is also for the commercial purpose, so it is the multiple cropping. I think the whole classification of the agriculture is understood, is done. Any problem till now? If you want to note down anything from here, so you can note it down. If you want to note down or take the screenshot of it, you take the screenshot and then we will proceed. अरे क्या है लेफ्ट का? चलिए now we will try to understand the cropping pattern of India. Cropping pattern. The next topic is cropping pattern. किस पैटर्न पे क्रॉपिंग होती है इंडिया में? कैन यू टेल मी व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ क्रॉपिंग? कब कब क्रॉप करते हैं हमारे फार्मर्स जो हैं? On the basis of season, there are three patterns of cropping. One is called Kharif, Zaid. Rabi, Kharif and Zaid. What is the basic difference in between these three? You will tell me the basic features of all these three. अच्छा, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? Kharif is the rainy season crop. Rabi is the winter season crop. Zaid is the this is in between. They are the summer, or rather you can write the summer season crop. So this is rainy season, this is winter season, this is summer season. Now what are the different other features of खरीफ? ये हम कब करते हैं? इसका कल्टीवेशन किस महीने के बीच में होता है? रेनी सीजन. इट इज सोन. द सीड्स आर सोन इन द स्टार्टिंग मंथ ऑफ द रेनी सीजन. फॉर एग्जांपल रेन कब से शुरू होता है? जून. सपोज जून से स्टार्ट करते हैं और ये कब तक चलता है? इसका हम हार्वेस्टिंग करते हैं सितंबर टू अक्टूबर तक. आई एम टॉकिंग अबाउट खरीफ. रबी में कब से करते हैं? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम इसकी स्टार्ट करते हैं. अक्टूबर टू दिसंबर इसका हम स्टार्ट करते हैं और ये कहाँ तक चलते हैं? 6 महीना ऐड कर दीजिए इसमें. सो व्हाट विल बी 6 मंथ्स लेटर? अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. अप्रैल में इसकी कटाई शुरू हो जाती है. अप्रैल से लेके जून तक में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. दिस इज डन. जैद का कौन सा सीजन होता है इन दोनों के बीच का? फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ग्रो करते हैं. सपोज ये दिसंबर में कट गया, ये अप्रैल वगैरह में कट गया, तो मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सीजन होता है इसका. कैन यू टेल मी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस? खरीफ का एग्जांपल बताइए. पैडी, राइस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ दिस खरीफ. ये स्टेपल क्रॉप भी है हमारे कंट्री का. मैक्सिमम लोग इसको स्टेपल क्रॉप की तरह यूज करते हैं. कुछ मिले ना मिले राइस मिलना चाहिए, कुछ मिले ना मिले व्हीट मिलना चाहिए. सो व्हीट एंड राइस एंड मोर ओवर यू कैन साउथ में तो लोग राइस के लिए दीवाने हैं. सो पैडी. अच्छा, कैन यू टेल मी कि which state is called the ball of rice? Ball of rice. और थोड़ा नजदीक जाइए, केरला के और थोड़ा नजदीक जाइए. यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. थोड़ा और नजदीक चाहिए. चावल का कटोरा. इट इज एपी, आंध्र प्रदेश.
Okay, by the way, so paddy is one of the staple crop which is kharif. What is the other crop which is kharif? Maize. Maize is kharif. चलिए, these are the two main crops which is kharif. विंटर में बताइए. दिस इज wheat. विंटर से W और wheat से W. और कौन से क्रॉप हैं इसमें? सारे के सारे नट्स वगैरह आते हैं. ठीक है, जैसे हो गया इसमें आ जाता है बार्ले, पीस, ग्राम. ओके, ग्राम काइंड ऑफ दाल होता है एक तरह का, आई थिंक, है ना. यू कैन, ग्राम इज अ काइंड ऑफ लेग्यूम. ग्राम इज ए लेग्यूम. ठीक है, लेग्यूम किसको बोलते हैं? जिसके दो हाफ हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेग्यूम. फॉर एग्जांपल पल्सेस इज अ काइंड ऑफ लेग्यूम. सो ग्राम इज आल्सो लेग्यूम. ये नहीं होता, ग्राम उसको बोलते हैं चने को. चने को चने, हाँ सॉरी, सो चने को ग्राम बोलते हैं. सो सॉरी, चने को ग्राम. पीस तो पता ही है, मटर. ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें नट्स आ जाते हैं थोड़े, ग्राउंड नट. और कौन से नट होते हैं बताइए? ग्राउंड नट के अलावा और कौन सा नट होता है? इसमें हाँ यस, इसमें बीन्स भी आते हैं सारे. सोयाबीन फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड नट, वॉलनट. वेरी गुड. और बताइए, मेज इसमें आता है, ज्वार. अच्छा, रागी यहाँ आता है. ठीक है, दिस इज ज्वार एंड बाजरा. सॉरी, अच्छा डोनट. नट में डोनट नहीं. डोनट नहीं लिखना है दिव्यांश जी इसमें. ओके, सो ज्वार, बाजरा, रागी. रागी इधर आ जाएगा. इसमें सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट सारे आ जाते हैं. अच्छा, जैद में बताइए, इसमें सारे के सारे वो मेलन्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन. और कौन सा मेलन होता है? मस्क मेलन, क्यूकम्बर्स आ जाते हैं. और कौन कौन से? ककड़ी वकड़ी, जो भी तोरी वोरी होती है ना, वो सब इसमें, जो सब्जी काइंड ऑफ थिंग होती है ना, वो इसमें आती है काफी सारी. तो आई थिंक द ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया इज क्लियर. नाउ सी, ये रेनी सीजन का क्रॉप है. तो जहां जहां रेनी सीजन ज्यादा होगा वहां इस तरह की मतलब पैडी, मेज, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, ये सब उगाया जाएगा. विंटर का ये है क्रॉप. तो ये कहाँ पर उगाया जाएगा? जहां पे थोड़ा सा ठंडा माहौल है. ठंडा माहौल, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ ना सभी का एक एक करके. सी, रेनी सीजन में कहाँ पर क्रॉप, ये सारे क्रॉप्स कहाँ पर होंगे? जहाँ बारिश ज्यादा होती है. सपोज वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु. उसके बाद वो पूरा का पूरा मालाबार कोस्ट जो है हमारा, गेटिंग? मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट में क्या आ जाता है? कहां पर? अच्छा, कहां पर बिल्कुल भी फार्मिंग नहीं होती? इंडिया में. इंडिया में कहां पर बिल्कुल भी फार्मिंग नहीं होती? हर जगह तो अलग अलग टेक्निक से फार्मिंग स्टार्ट कर ही दिया. जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, वो स्ट्रिप क्रॉपिंग स्टार्ट हो गई है. फिर उसके बाद या फिर आप यूं कह लीजिए कि उसके बाद जो बगल में उत्तराखंड वगैरह है, तो माउंटेन वाली जो क्रॉपिंग होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, है ना. फिर वो वाला बेल्ट होता है, कौन सा? शेल्टर बेल्ट वगैरह बना करके वो लोग क्रॉपिंग शुरू कर दिए हैं. और उसके बाद जहाँ पे, हाँ, दिल्ली में जगह नहीं है. दिल्ली में फार्मिंग का स्कोप बहुत है. दिल्ली में जगह भी तो होनी चाहिए. आउटर वर्ल्ड दिल्ली में उसकी फार्मिंग होती तो है. रोज की फार्मिंग काफी ज्यादा होती है.
दिल्ली के अगल बगल आउटस्कर्ट्स में जो है ना एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा रोज़ की फार्मिंग होती है। और दिल्ली के बगल में हरियाणा है, देख लीजिए हरियाणा कितना ज़्यादा रिच है फार्मिंग के मामले में, दिल्ली के बगल में ही तो है। दिल्ली में एग्जैक्ट दिल्ली में नहीं होती फार्मिंग बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, लोग के खड़े रहने की जगह नहीं है, फार्मिंग किधर करेंगे? पार्क तो एक गाड़ी हो नहीं पाती घर के सामने, उतना भी जगह नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो केरला, बाय द वे केरला और भी जितने हिल स्टेशन जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट इज दिस खरीफ रीजन में ना हरियाणा एंड पंजाब में पैडी यानी कि राइस का कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड सीड जो आया था और मैक्सिमम इरिगेशन हुआ था हरियाणा पंजाब वाले एरिया में। दैट्स व्हाई इन हरियाणा एंड पंजाब आफ्टर स्पेशली after the green revolution the cultivation of rice has started. Otherwise these are not the a kind of good weather condition these provides for the production of rice. But although अब ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न इन्होंने बना लिया है कि हरियाणा में काफी ज्यादा हरियाणा पंजाब में राइस होती है। व्हाट इज वीट? वीट तो सारे के सारे ठंडे वाले इलाके कौन कौन से हैं इंडिया में बता दीजिए। JNK, अब लद्दाख को भी अलग से यू कैन राइट ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद और कौन सा लिखते हैं? जम्मू कश्मीर, इतना ही, ठीक है, मोर और लेस। ये कहाँ पर होता है? ये कहीं भी हो सकता है, समर वगैरह जहाँ पर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन वगैरह कहाँ पर ज़्यादा होता है? जहाँ नदी के किनारे वाटरमेलन सब होता है। राजस्थान में हो सकता है, बिहार वगैरह में भी होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड, सो वी विल नॉट गो डीप इनटू इट। सो आई थिंक इफ इट इज क्लियर, सो टेक द स्क्रीनशॉट और आस्क मी if there any question. समझ आया ये? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर नोट इट डाउन फास्ट। So if it is done, so let us talk about some of the major crops. The most important crop, देखिए इन सबसे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं वैसे ही पॉइंट्स को बोर्ड पर लिख रहा हूँ जो कि जिससे डायरेक्ट 1 मार्कर या MCQ पूछा जा सकता है या फिर केस स्टडी बन सकता है। ऐसा मतलब ये मतलब बेवजह का इंफॉर्मेशन मैं नहीं लिख रहा है। NCERT में काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर एक पॉइंट का। व्हाट इज रबी, खरीफ, ज़ैद, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब बताया गया। बाय द वे, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? द पैटर्न इन विच द फार्मर्स ग्रो द क्रॉप्स, ठीक है। तो यही 3 पैटर्न है जिस हिसाब से फार्मर्स ग्रो करते हैं। बाय द वे, द मेजर क्रॉप, द फर्स्ट मेजर क्रॉप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द, कैन यू नेम? राइस। Rice is the most important crop of India. Why rice is the most important? Can you tell me? क्या रीजन है राइस का मोस्ट इम्पोर्टेंट होने का? It is a matter of preference, sir. So I can't say. मुझे तो राइस नहीं पसंद। Do you like rice? Do you like rice? You also like rice, okay. So most of the persons like rice. Not only rice. Rice एक ऐसा क्रॉप है जो कि केवल नॉर्थ इंडिया में ही फेमस नहीं है, साउथ इंडिया में भी फेमस है। रीजन इज सिंपल, क्योंकि अच्छा राइस कहाँ पर फेमस नहीं है? जो थोड़े माउंटेन वाले एरिया है ना, फॉर एग्जांपल उधर हिमाचल साइड के हो गए लोग, जम्मू कश्मीर साइड के लोग हो गए, दे डू नॉट प्रीफर राइस, ठीक है। कुछ रीजंस हैं। पहले तो राइस ठंडा होता है, तो सो ठीक है, आप राइस बहुत ज़्यादा, बाय द वे दिस इज माय रीजन। द रीजन इज कि उनके एरिया में राइस वगैरह का कल्टीवेशन ही नहीं होता, तो वो खाएंगे क्या? Okay, by the way, except this mountainous region, in every particular state of India, rice is produced. That's why this is also called the staple crop. What is the staple crop? कुछ मिले ना मिले, राइस तो मिलना चाहिए भैया, ठीक है, kind of.
तो साउथ इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा फेमस है। नॉर्थ इंडिया में आपको पता ही है, लोग राइस के बिना रह नहीं पाते। बिहार झारखंड साइड चले जाइए, एक दिन ऐसा नहीं गुजरेगा, सम पीपल आर दे आर यू नो काइंड ऑफ एडिक्टेड ऑफ राइस। सुबह खा रहे हैं, नाश्ते में चावल खा रहे हैं, दोपहर में चावल खा रहे हैं, रात में चावल खा रहे हैं। सो राइस खाते, ऐसा बोला जाता है हमारे साइड कि राइस खाने से ना दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होता, बट दिस इज नॉट द केस। राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कैप्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नो इश्यूज। अच्छे राइस से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ होता है दिमाग का, बाय द वे। सो चलिए, राइस के क्या क्या कंडीशंस है मेजर क्रॉप्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि राइस इज अ खरीफ क्रॉप। तो ये कब उगाया जाएगा? रेनी सीजन में, ठीक है। What are the other requirements? Rice needs 25 degrees Celsius of the temperature during its whole cultivation process. It needs at least on average 25 degree Celsius. It needs 100 centimeter or more rainfall. अच्छा, राइस ही एक ऐसा क्रॉप है जिसको राइस, और उसके बाद एक और है ज्वार एंड बाजरा। इसको काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रॉप है कि फील्ड में ना हमेशा पानी रहना ही चाहिए। राइस जहां पर लगा हुआ है जिस फील्ड में, उस फील्ड में हमेशा पानी रहना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट नीड्स सो मच वाटर। सो इसको रेनी सीजन में ही, दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि बारिश, आपने लैंको वाली स्टोरी पढ़ी थी, लैंको याद है, अ लेटर टू गॉड। बारिश को लेकर के उन लोग कितने खुश हो गए थे। व्हाट वाज द रीजन? दे वर प्रोड्यूसिंग राइस ओनली? नो, दे वर प्रोड्यूसिंग कॉटन। इसमें एक कॉटन भी लिख लीजिए, ये रेनी सीजन वाले में कॉटन लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज आल्सो अ वाटर इंटेंसिव। कॉटन, लैंको वाज प्रोड्यूसिंग कॉटन, तो कॉटन के लिए भी बारिश चाहिए होती है, बाय द वे। सो दिस इज राइस के लिए 100 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल चाहिए होता है ऑन एवरेज। व्हाट आर द अदर फीचर्स फॉर राइस का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है मैक्सिमम? इंडिया में। चलिए मैं मैप बना करके आपको समझाता हूँ आपको। ये प्रोडक्शन इसका कहाँ, और कुछ और चीजें लिख लीजिए। इट नॉट ओनली नीड्स हाई रेनफॉल बट ऑल्सो हाई ह्यूमिडिटी। इट ऑल्सो नीड्स हाई ह्यूमिडिटी, ओके। उसके बाद और क्या चाहिए राइस के लिए? आई थिंक दिस मच इज इनफ, ठीक है, इतना ही चाहिए। चलिए, ये मैं रब कर दूं, ये वाला पार्ट, क्रॉपिंग पैटर्न। रब कर दूं इसे? चलिए, नाउ यू विल टेल मी कि बारिश कहाँ ज्यादा होती है और राइस का प्रोडक्शन अच्छे से कहाँ पर हो सकता है? कहाँ पर? आई कांट हियर। साउथ में? अच्छा, साउथ। आई अंडरस्टूड, नाउ आई अंडरस्टूड। देखिए, इंडिया सही बना है क्या? इंडिया सही बना है क्या? चलिए, देखिए राइस कहाँ पर होता है बेसिकली? ये पूरा एरिया राइस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा होती है, पता ही है आपको, हाई रेनफॉल। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है, ये इसको भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए आप। उसके बाद ये जो पूरा एरिया है
इसको कर दीजिए पूरा, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा राइस का है, ठीक है, मोर और लेस। इस एरिया में राइस क्यों होता है सबसे ज्यादा? अच्छा, ये एरिया भी राइस का है बाय द वे, ये पूरा, ठीक है, इतना दूर से रब कर दीजिए दिस। ऐसा हम लोग एक रफ ड्रॉ कर सकते हैं राइस के पूरे एरिया को। यहाँ पर क्यों सबसे ज्यादा राइस होती है? क्योंकि इधर से बारिश आती है, साउथ ईस्टर्न मानसून, बारिश काफी ज्यादा होती है, इधर से भी बारिश आती है तो बारिश इधर भी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो दीज आर द कोस्टल एरिया। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होती है। ये एरिया में भी राइस काफी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है। राइस के साथ एक और कंडीशन लिख लीजिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न कैनल्स एंड वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? जहां पे सपोज कीजिए पानी ज्यादा नहीं मिल पाता तो वाटर का डिवीजन कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर भी राइस होती है। क्यों? यहाँ पे पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा में भी राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमने वाटर डिवीजन से पानी इधर इरिगेशन काफी ज्यादा करवाते हैं, मच मोर इरिगेशन। So there is much more irrigation in this, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी राइस का प्रोडक्शन अब होने लगा है। सो ड्यू टू मॉडर्न कैनल्स एंड वाटर डिवाइड फॉर्मेशन, द राइस कल्टीवेशन हैज स्टार्टेड इन द एरिया वेयर देयर इज लेस वाटर, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी। सो दिस इज द बेसिक whole requirements, climatic conditions, everything about the rice. I hope you understood this particular crop. Yes or no? Okay. So इसको कर लीजिए। यहीं पर आज हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जो मेजर क्रॉप्स बचे हुए हैं, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स बचे हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स बचे हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, शुगर केन, बनाना, है ना, मैंगो, ये सब भी देखेंगे, वीट देखेंगे, ज्वार, बाजरा, रागी, तो ये सब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। टी देखेंगे, बेवरेजेस देखेंगे, टी एंड कॉफ़ी का भी देखना है हमें, कॉटन का देखना है। तो दिस मच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इस चैप्टर को। सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास, ओके।